presentation here, and I hope everybody is seeing the screen. सबको ये screen नज़र आ रही है? So we would like to start with, इससे पहले we already gone through the sum of the derivation, and we see that how the interference is going to be affected into the other channel, into the other cell. हमने कहा कि if we have got in a co-channel cells, जहाँ जहाँ जिन जिन cells के अंदर एक ही जैसी frequencies इस्तेमाल हो रही हैं, for instance we have in a center is a blue cell, and we have got the first tier of the cell are the 6 in total in numbers that are going to use in the same frequencies as blue is using. तो इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर है वो भी यही फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं. सो इट मीन्स टू बी द ब्लू सेल will receive a lot of interference from its co-channel cells into the entire structure. So सबसे उसको मिल रही हैं, and we derived that what would be the amount of this. So उसकी amount क्या होगी? So we already have derived that signal to interference. This interference is said to be the co-channel interference. तो इसको हम thoroughly discuss कर चुके हैं. So not only the noise, but we have got the interference is the part that can deteriorate your signal. आपके signal को ख़राब कर सकती हैं. थोड़ा सा आगे चल के we will have to study some more kind of the interference into the system is said to be adjacent channel interference. Adjacent channel interference is different from the co-channel interference. Co-channel interference से थोड़ा difference है, लेकिन उसका effect co-channel interference जैसा ही होता है. तो हम उसको treat भी co-channel interference जैसा ही करते हैं, but that interference is basically due to the improper filtrations of the frequency band by the equipment. Equipment के अंदर जो आपका filters लगे होते हैं जो किसी खास band of frequencies को accept कर रहे होते हैं, and it rejects the unwanted frequencies out of that band. उस band से बाहर जितनी frequencies होती हैं उनको reject कर रही होती हैं. मसलन if you have gotten a 4 kilo of the channel from 0 to 4 kilo, 0 से 4 kilo तक एक channel एक band है, और दूसरा ये that is been allocated to a one particular user, एक channel को assign किया गया है. Now what's happened from 4 to 8 kilohertz is assigned to the other user, दूसरे user को assign किया गया है. Now what would happen that कि वो 4 से 8 kilohertz के band को as precisely जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता. व्हाट विल हैपन दैट कि वो 4 किलोहर्ट्ज से नीचे भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज को लीकेज कर देता है, और 8 किलोहर्ट्ज से ऊपर भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को लीकेज कर देता है. सो व्हाट्स हैपेंड, इट विल बिकम द सोर्स ऑफ द इंटरफेरेंस टू द एडजेसेंट चैनल जो उसके साथ बिल्कुल पड़ा हुआ है. दिस इज सेड टू बी एडजेसेंट चैनल. सो व्हाट विल हैपन दैट इट विल इंटरफेयर एंड इट विल डेटेरियोरेट द सिग्नल ऑफ द अदर चैनल. दूसरे चैनल की सिग्नल को डेटेरियोरेट कर देता है. हमजा बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर, हो रही है रिकॉर्डिंग स्टार्ट. ठीक है, सही है. सो वी हैव एन एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस वी आर गोइंग टू स्टडी. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी के अंदर वी जस्ट हैव एंड डिस्क्राइब दैट के व्हाट यू मीन बाय द एडजेसेंट चैनल. मतलब साथ पड़ा हुआ चैनल जो फ्रीक्वेंसी बैंड में बिल्कुल साथ मिले हुए हैं. तो व्हाट्स हैपन कि वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को imperfection of the filtration की imperfection जो कि डिवाइस के अंदर फिल्टर सर्किट लगा होता है, तो वो फिल्टर सर्किट की imperfections की वजह से वो some of the frequency leaks out into the other region, दूसरे region के अंदर leaks हो जाती है, and that will create a problem, and interference is a source of interference there. Okay, so this is said to be adjacent channel. इसको हम adjacent channel interference कहते हैं. थोड़ा सा इसको मैं वर्डिंग्स के अंदर इस स्लाइड के अंदर देख लेते हैं. इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नल्स विच आर एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज के अंदर एडजेसेंट है, इट मींस भी साथ साथ पड़े हुए हैं. रिजल्ट फ्रॉम परफेक्ट रिसीवर्स फिल्टर्स विच अलाउ नियर बाय फ्रीक्वेंसी टू लीक, वो लीक हो जाती हैं. पर्टिकुलरली सीरियस इफ एन एडजेसेंट चैनल यूजर इज ट्रांसमिटिंग अ वेरी क्लोज टू द रिसीवर के रेफर्ड एज सही. नंबर 1 पॉइंट क्लियर कर दे, इसकी समझ नहीं आई. इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम, जी हाँ, इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नल विच आर एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी मसलन मैंने आपको बताया कि 0 से 4 किलोहर्ट्ज का एक बैंड है, दूसरा बैंड जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है 4 से 8 किलो, तो बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं ना. सो दिस इज सेड टू बी एडजेसेंट टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है. जिस तरह के एक घर है
ایک گھر کی دیوار دوسرے گھر کے ساتھ کامن ہے, سو اٹس ہیڈ ٹو بی ایڈجسٹنٹ ہاؤسز ہیں, یہ ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو اگر اسی طرح فریکوینسی بینڈ کے اندر وی ہیو نا ون چینل از 0 to 4 کلو ہرٹز کے اندر پڑا ہوا ہے, دوسرا 4 سے 8 کلو ہرٹز کے, تو وہ جو 4 کلو ہرٹز کی باؤنڈری ہے 4 کلو ہرٹز کے اوپر اس فریکوینسی کے اوپر, سو واٹس ہیپن کہ اتنے پرفیکٹ ہمارے پاس فلٹرز نہیں ہے کہ 4 کلو ہرٹز سے 4.1 کلو ہرٹز کے اندر وہ نہیں جا سکتے. It may happen that some of the frequency leakage of the one channel into the other channel. So it will create a problem that because that is going to be interfering to the other channel. دوسرے چینل کو انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ایک ایفیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں نیئر فار ایفیکٹ. نیئر فار ایفیکٹ. So we are going to study the near far effect کہ وہ کیا چیز ہے. اور یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے وین ایور دا ٹرانسمیٹر نیئر بائی ٹرانسمیٹ کیپچر دا ریسیور, ریسیور کو کیپچر کر دیتا ہے. سو ہاؤ وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ول ڈسکس ان دی نیکسٹ سلائڈس کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اوکے, یہ تھوڑا سا میں نے ہینڈ ریٹن چیز کی ہوئی ہے, یو جسٹ ہیو ٹو سی دس. Near far effect, we are going to be describing the near far, and in that context we can define the adjacent channel interference as well. Adjacent channel کو بھی ہم اسی context کے اندر ہم دیکھیں گے کہ how it is going to be affected there. Now notice that we have got the two users. For instance is user 1 and the other is said to be user 2. دو users ہیں ہمارے پاس, and this is said to be a transmitter and receiver. Transceiver یہاں پہ is a base station. What would happen that the user 1 is at a distance d1 and a user 2 at the distance d2, and the distance between the two users is represented as a capital D. یہ capital D کے ساتھ represented. So it may happen that user 1 is occupying this band of frequency کو occupy کر رہا ہے user 1, and which is centered at a frequency f1. ٹھیک ہے. And the other user is occupying the this band of frequencies کو لے رہا ہے which have a central frequency said to be f2. وہ f2 ہے, and that both are, اگر یہ frequency spectrum ہے تو both are adjacent to one, یعنی کہ ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں. لیکن it may happen that کہ جب یہ بھی ٹرانسمٹ کر رہا ہے یہ بھی ٹرانسمٹ, تو دونوں کی انفارمیشن اس ریسیور پہ ریسیوڈ ہو رہی ہے, اس ریسیور پہ ریسیوڈ ہو رہی ہے. What will happen that کہ اس user 1 اور user 2 کی جو فلٹریشن کا لیول ہے is not a very good, وہ صحیح نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ شارپلی یہاں پہ ختم ہو جاتا تاکہ وہ دوسرے یوزر کی فریکوینسیز کے اندر داخل نہ ہوتا. So it may happen that کہ some of the frequency leaks and come into the other user's band, اور user 2 کا ادھر گھس گیا. So what will happen that this is said to be overlapping region. This is an overlap region. In that particular region, it may happen that both of the information will be lost. دونوں کی information lost ہو جائے گی. لیکن near far effect کیا کہتا ہے؟ U1 is nearer to that receiver as compared to U2. تو جب دونوں ایک ہی پاور سے اگر ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے, U1 بھی, user 1 بھی اور user 2 بھی, then what will happen that کہ user 1 کا جو سگنل زیادہ پاور کے ساتھ بیس اسٹیشن کو ملے گا as compared to the user 2. ٹھیک ہے. مثلا اگر میں ایک اور شاید ادھر مجھے ایک گراف بنانا چاہیے تھا جو ابھی میں فیل کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. مثلا اگر میں ایک سائنوسائڈل ویو بنا دوں U1 کے لیے, so we have got a very good peak has been given to the receiver that the signal initiated from U1, لیکن we have got a very small power is received as it is initiated from the U2. So U1 will capture the receiver. U1 جو ہے وہ بیس اسٹیشن کو کیپچر کر لے گا in that region, اس ریجن کے اندر کیپچر کر لے گا, and the base station will not recognize the signal from U2 کیونکہ اس کا بہت ویک سگنل ادھر پہنچا ہے because of the distance. کیونکہ ہمارے پاس پاور لا ہے کہ receive power will then inversely proportional is equal to d power of n کے برابر ہوتا ہے. So it means to be if you one of the user is much away from the base station, its very weakened power will be received at the receiver. So U1 will capture the receiver. Receiver کو capture یعنی base station کو capture کر لے گا, and U2 signal اس میں دب کے رہ جائے گا because U2 سے بہت weak signal
वहाँ मिल रहा होता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस टू बी ओवरलैप रीजन के बारे में, यानी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो U1 की बड़ी एक्यूरेटली रिसीव कर लेगा रिसीवर, लेकिन U2 उसके अंदर दब के रह जाएगा क्योंकि U2 का डिस्टेंस ज़्यादा है एंड विल बी अ लेसर पावर के साथ उसको वहाँ से मिला. इसे कहते हैं नियर फार इफेक्ट. U1 is near to the receiver, U2 is far away from the receiver. So U1 will capture the receiver को capture कर लेगा. If you examine that over here, यहाँ लिखा हुआ है कि nearby transmitter capture the receiver को capture कर लेगा. It will capture the receiver. So that is because of the near far effect की वजह से हुआ. And this is said to be adjacent channel interference. This kind of the interference is also said to be an adjacent channel interference. So hopefully you understand what do you mean by the adjacent. So you would like you should adjacent channel interference. कोई चैनल तो वो होता है कि जो दूसरे सेल के से एक सेल को इंटरफेरेंस आ रही होती है. मसलन जिस टियर से जिस टियर के अंदर सेम फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, सो इट कैन हैव एन सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस टू द अदर को चैनल सेल को इंटरफेरेंस दे. लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जी सर, इसमें अगर सीडीएमए मतलब यूज हुआ फिर भी ओवरलैपिंग होगी? अच्छा, सीडीएमए के अंदर ये दिस इज अ स्पेशल केस. सीडीएमए के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी बिकॉज वी आर गोइंग टू बी शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ फिगर. लेकिन वहाँ पे भी नियर फार इफेक्ट को जो है वो बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है टू दी 1 dB तक. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डज इट मीन टू बी. तो सीडीएमए के अंदर भी ये नियर फार इफेक्ट जरूर होता है. सो नियर फार इफेक्ट को हम लोग करेंगे. अच्छा, नाउ यू सी दैट कि अगर मैं थोड़ा का इसको, चूँकि ये बात इनिशियली आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि व्हाट डज इट मीन टू बी, और ये इसका जो इनिशियल एब्स्ट्रैक्ट है इज लाइक दिस. नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसीजर बाय यूजिंग अ बोडे प्लॉट. बोडे प्लॉट के बारे में आपने कभी सुना है? नो सर. नो सर. Bode plot आपको you must have to be understand you must have to go through the circuit and system 2 के कोर्स के अंदर ज़रूर होता है Bode plot. जब आप RLC सर्किट को फिल्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सो आप Bode plot पढ़ते हैं. इसके साथ आप कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर you must have gone through the Bode plot भी पढ़ाया जाता है. तो बहरहाल थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग द Bode plot. Bode plot is basically we are going to be used for to design, or the properties of the filters is going to be studied by using or can be described by using the Bode plot. Bode plot से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी फिल्टर्स को हम Bode plot से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी. Now examine that कि मैंने एक यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है and the x axis is said to be frequency. ये frequency का ग्राफ है, और जो y axis है is said to be the gain of the signal. यानी सिग्नल की जो रेशो है उसका गेन है. इसको पावर आप समझ लें, पावर ऑफ द सिग्नल की पावर है. So this is basically गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या गेन है. आइडियली फिल्टर कैसा होना चाहिए? आइडियली फिल्टर कैसा होना है? आपने फिल्टर्स तो पढ़े होंगे सर्किट एंड सिस्टम्स के अंदर. यस सर. तो उसका आइडियल फिल्टर्स कौन से होते हैं? सर वो बिल्कुल एज पे, मतलब डायरेक्ट वो जो करते हैं वाई एक्सिस की तरह, वो जो उसका होता है. ठीक है, दैट्स वेरी फाइन. सो यू सी दैट जी हम वर्टिकल. सो यू सी दैट कि ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज अ स्ट्रिक्टली गोस अप, then it will be flattened and will be come down here. ये आपको नजर आ रहा है. This is said to be a very ideal kind of the filter property. ये फिल्टर की बड़ी आइडियल किस्म की प्रॉपर्टी है. आइडियल प्रॉपर्टी मीन टू बी कि आपके जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर ने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज यहाँ से स्टार्ट की और एक कांस्टेंट गेन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज की, यानी कांस्टेंट गेन ऑफ पावर के साथ उसको ट्रांसमिट किया, और एग्जैक्टली
वो शार्पली कम डाउन टू द लोअर एडवर्स, फिर इसके बाद वो कोई लीकेज नहीं है। अगर इस किस्म की प्रॉपर्टी का फिल्टर हमें मिल जाए, व्हाट विल हैपन दैट कि आपका तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का फिल्टर है, क्योंकि बिकॉज नो फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन लीकेज आउट ऑफ दैट, इसके बाहर कोई लीकेज नहीं हो रही है। इज इट राइट? सो इट इज सेड टू बी एन आइडियल फिल्टर, यानी कि इस किस्म की फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता है विद एन इक्वल गेन के साथ, यानी गेन भी उसकी बिल्कुल फ्लैट है और साथ साथ वो लीकेजेस भी नहीं कर रहा और वो बड़ी शार्पली कम है। इस तरह का अगर मैंने चैनल साथ में रख दिया और उसके साथ दूसरा चैनल, सो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस को क्रिएट नहीं करेंगे। आप साथ साथ भी रख दें, एडजस्टेंट चैनल भी होंगे, सो दैट विल नॉट बी, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल फिल्टर। ये आपके पास प्रैक्टिकल फिल्टर है। प्रैक्टिकल फिल्टर के अंदर क्या होता है कि आपका जो गेन है इज बेसिकली द गेन ऑफ द सिग्नल इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड, वो ड्रॉप्ड हो जाती है और ड्रॉप होते वो शार्पली नीचे नहीं आती, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज के बाद वो डाई आउट होती रहती है। इसी तरह इस साइड के ऊपर भी डाई आउट होती रहेगी। यू सी दैट इट इज नाउ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट आइडियल फिल्टर। आइडियल फिल्टर से बेसिकली इट्स गोइंग टू बी, तो इसको जो है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी, इसको हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी कहते हैं। सो बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी सिलेक्टिविटी, अगर ये एक ही गेन के साथ रहती है तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी नहीं हो रही, बिकॉज इट इज नाउ गोइंग टू बी, यहाँ मिडल के ऊपर आपको बड़ा अच्छा गेन मिल रहा है पावर का, लेकिन आप जो इस मिडल फ्रीक्वेंसी F1 की मिडल फ्रीक्वेंसी से जो आप पीछे चले जाते हैं, F1 प्राइम की तरफ चले जाते हैं, सो व्हाट्स हैपन, द गेन ऑफ द सिग्नल इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। अच्छा, एक और चीज भी लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसे कहते हैं हम हाफ पावर बैंडविड्थ, यानी वो बैंडविड्थ जिसमें के सिग्नल की आधी पावर लाई जाती है, यानी आधी पावर लाई जाती है, तो उस बैंडविड्थ को उसके अंदर हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है दैट वुड बी इनफ इंफॉर्मेशन, उसमें हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर इंस्टेंस कि जो हाफ पावर बैंडविड्थ, अब इस सिग्नल का जो बैंडविड्थ है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, theoretically what would happen that कि इसकी bandwidth कितनी होगी, its bandwidth will be extended from minus infinity to plus infinity, so it's a very strict definition over there, so it's going to be extending of the bandwidth of the one channel is extending from minus infinity to plus infinity। ठीक है जी। आप जब कभी भी आपने क्योंकि कम्युनिकेशन का कोर्स भी पढ़ा हुआ है, तो लास्ट टाइम शायद मैंने पढ़ाया था, वो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को नहीं पढ़ाया मैंने, तो लास्ट जो उनको मैंने इस पे बहुत अच्छे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और उसकी ग्राफ्स बना के दिए थे कि हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो ये बेसिकली अ सिंक फंक्शन होता है। सिंक फंक्शन नेवर डाई आउट, इट्स एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी डिकेइंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट इट नेवर गोज टू जीरो, वो जीरो पे नहीं आती है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट द पावर ऑफ द सिग्नल विल बी रिमेन आउट ऑफ दैट बैंड। सो जो हाफ पावर बैंडविड्थ है उसके अंदर हम कहते हैं कि दैट बैंड इज इनफ टू एक्वायर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ सिग्नल, जो सिग्नल के अंदर कंटेन होती है, तो वो हमें हाफ पावर बैंडविड्थ से हमें मिल जाती है। ओके, सो ये हमारे पास है। हाफ पावर बैंडविड्थ को थोड़ा सा और भी मैं डिस्क्राइब कर दूं, अगर कहीं यहाँ मैंने लिखा हुआ है आई थिंक। सर ये जब हम फिल्टर लगाते हैं इस पे, तो इसके साथ तो हमारा बैंडविड्थ भी सर जाया होता है ना जी। फिल्टर लगा के हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस बैंड की ये जो यूजर उसकी तो इंफॉर्मेशन यहीं पड़ी हुई है ना, यहीं पे। उसके बाहर तो वो एक क्या करता है कि वो इंटरफेरेंस ही क्रिएट करता है दूसरे यूजर के लिए। तो फिल्टर इज इम्पोर्टेंट दैट कि वो सिर्फ इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, उसका काम ही इसी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। मसलन आपने रेडियो के अंदर, मैं फिर भी मिसाल देता हूँ रेडियोज के अंदर आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, इज इट राइट? तो उसकी आप क्या कहते हैं कि आप बेसिकली बैंड्स, बहुत सारे बैंड्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स पड़े होते हैं। आप 500 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाके तो क्या करते हैं कि एक बैंड को पकड़ लेते हैं, एक चैनल को पकड़, सो वहाँ उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इज इट राइट?
تو اوروں کی ریجیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلٹر نے کیا کیا کہ اتنے بینڈز کو ریسیو کیا اینڈ آؤٹ آف دیٹ بینڈ جتنی بھی فریکوینسیز ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا. سو اونلی ون پرٹیکولر چینل ول بی ایکوائرڈ بائی دس. وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ ساتھ والا جو بینڈ ہوتا ہے دیٹ ول بی آکوپائڈ بائی سم ادر چینل. کوئی اور چینل اس کو, کوئی اور یوزر اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. Is it right? Yes, sir. So that it will never be lost. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ایک چینل ہے ایک یوزر کی جو فریکوینسی should not be overlap with the other یوزر کی فریکوینسی کے ساتھ overlap نہ کریں. This is important. So it's said to be اس کو ہم adjacent channel interference کہتے ہیں. تو ہوپ فلی کہ آپ اس کے اوپر سمجھ گئے ہیں. سو ہم ہاف پاور بینڈ وڈتھ کی بات کر رہے تھے. ہاف پاور بینڈ وڈتھ یو سی دیٹ کہ اگر آپ پاور لیول تقریباً ہاف رہ جائے, یعنی 1 آؤٹ آف 2 رہ جائے, تو وہ -3 dB کا ڈیکے کے ساتھ آپ کو ملتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا, پہلے جو آپ کو پاور 1 ہے تو جو نچلی والی وہ تو اس بیکم ہاف. اگر آپ کے پاس ہاف پاور ہے سو اٹ بیکم -3. اگر آپ اس کو سالو کریں یو ول گیٹ آنسر از ٹو بی -3 dB. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس اس کی جو ڈراپ ہے, یہ جو ڈراپ ہے, یہ دیٹ پوائنٹ دیٹ ول بی, اور یہاں پیک سے لے کر یہاں تک کا -3 dB کا ڈراپ ہوا ہے. یہاں پہ -3 dB کا یہاں پہ ڈراپ ہو چکا ہے. So we stated that this is the half power band. So bandwidth is now going to be increase ہو چکی ہے and this is said to be the half power bandwidth, اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, this is not a linear scale. یہ آپ کے پاس linear scale میں نے نہیں بنایا ہوا. This is said to be logarithmic scale. میں جتنی باتیں کمیونیکیشن کے اندر آپ سے ڈسکس کروں گا تو میں DBs اور DBM اور DBWs کے اندر بات کریں گے. So I'm not interested in to use a linear سسٹم یا واٹس یا ملی واٹس اس کے اندر نہیں. تو میں DB, DBM, DBW کے اندر. So you must have to be clearly understand what does it mean to be. ٹھیک ہے. تو یہ logarithmic scale ہے. اگر میں اس scale کو دیکھوں تو یہ سا curved آ رہی ہے, یہ curved آ رہا ہے. دیکھیں یہ blue والا بھی اس طرح curved. میرا پوائنٹر سب کو نظر آ رہا ہے جی؟ پوائنٹرز جی سر. ٹھیک ہے Yes, جی. sir, نظر آ رہا ہے. یہ بلو جو ہے یہ curved ہے. Is it right? curved آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن جب میں اس کو logarithmic scale کے اندر دیکھوں گا نا تو یہ curve نہیں ہوگا. that will become as a linear آپ کو نظر آئے گا, linear. ٹھیک ہے جی. so you see that کہ آپ کے پاس linear line in the, اگر آپ کے پاس کوئی curved ہے in the linear scale کے اندر تو آپ کا logarithmic scale کے اندر it will be seem to be a linear line. آپ کو linear line کی طرح نظر آئے گی. So we are going to be describing this. Okay. Filter, what is the solution there? کیا solution ہے اگر ہمارے جو یوزر ہیں, کسی اوپریٹر کے جو یوزر ہیں یا کسٹمرز ہیں, ان کے موبائلز اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ لیکیجز کرتے رہتے ہیں, ایک فریکوینسی کو دوسرے پہ ایڈجسٹنٹ چینل انٹرفیرنس کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو آپریٹر کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ سب کے موبائل کے فلٹریشنز کو اچھا کر دے. مطلب سب کو کہے کہ آپ سامسنگ کے بہترین موبائل استعمال کریں تاکہ آپ کی جو موبائل کی فلٹریشن ہے وہ بہتر ہو اور دوسروں کو انٹرفیئر نہیں کرے. سو دیٹ از ناٹ سولوشن ود دی آپریٹر. آپریٹرس کے پاس یہ سولوشن تو ہے نہیں. تو آپریٹر کے پاس کیا سولوشن, اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپریٹر F1 کی فریکوینسی الاٹ کرے یوزر 1 کو اور یوزر 2 کو ذرا پرے فریکوینسی الاٹ کرے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کے درمیان میں کوئی بہت بڑا گارڈ بینڈ ڈال دے اور اس کی فریکوینسی کسی اور, تاکہ وہ لیکیج بھی کریں تو ایک دوسرے کو انٹرفیئر نہ کر سکیں, یہ والی انٹرفیئر. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ لاٹ آف دا فریکوینسیز ول بی لاس, ویسٹ ہوگی ڈیو ٹو بیکاز جو ان بٹوین فریکوینسیز ہیں وہ چونکہ الوکیٹ نہیں ہو سکیں گی دوسرے یوزر کو. سو دیٹ دا فریکوینسی بینڈ میں بی ریڈیوسڈ, اس کے پاس جو ہے نا اویلیبلٹی کم ہو جائے گی. So we describe the Bode plot.
इसका जो स्लोप होता है, सो दैट बोर्डे प्लॉट इज बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 10n log ऑफ f. इससे ये डिके कर होता है. ये n will describe the slope of the line. अच्छा, anybody can tell me अगर ये स्लोप जो है, ये स्लोप ज्यादा होगा तो फिल्टर अच्छा है या कम होगा तो फिल्टर अच्छा होगा? सर ये स्लोप जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. उतना अच्छा होगा. यस सर. यस सर. उतने फिल्टर्स अच्छे होंगे. सर वो डाई आउट वाली बात है ना सर, के वो डाई आउट नहीं. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जितना स्लोप कम होगा उतना अच्छा होगा. यस ये कह सर. रहे हैं हम. जी सर. हालांकि मतलब अगर जितना स्लोप ज्यादा होगा तो जल्दी डाई आउट नहीं होगा. स्लोप ज्यादा होगा तो जल्दी डाई आउट होगा ना सर, के डाई आउट तो वो ज्यादा बेहतर है. ना जी, जी सर. कि ताकि वो दूसरी फ्रिक्वेंसीज के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सके. सो इफ वी हैव गॉटन अ वेरी गुड स्लोप, अगर ज्यादा स्लोप होगा सो n विल डिसाइड द स्लोप ऑफ दैट फिल्टर. इस फिल्टर के स्लोप को वो डिस्क्राइब करेगा. ठीक है जी. फॉर इंस्टेंस देखें, लेट्स सपोज के the property of the filter is describing with that blue line से हम describe कर रहे हैं. और blue line decline करते यहाँ कहीं जाके decline होगी. इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है ये इसको ओवरलैप कर रहा है. ये ब्लू वाले चैनल को ओवरलैप कर रहा है इस रीजन के अंदर. एग्जामिन एट दी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूजर 2 यानी f2 के ऊपर देखें तो उस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये जो ब्लैक वाला सिग्नल है अपना यहां तक का इंटरफेरेंस दे रहा है, दिस पॉइंट. एंड फॉर इंस्टेंस वी स्टेटेड दैट कि द पीक वैल्यू ओवर देयर इज सेड टू बी अ 0 dBm. मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ 0 dBm है. तो जो ये ब्लैक वाला सिग्नल है वो डिके कर रहा है और जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो -20 dBm का इंटरफेरेंस दे रहा है इस ब्लू सिग्नल को. देन व्हाट वुड बी द सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो? क्या होगा एट दैट पॉइंट? इस पॉइंट के ऊपर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो क्या होगा? सिग्नल टू नॉइस लिख दिया मैंने. इट शुड बी अ सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो is 0 dBm minus 20 dBm. इस पॉइंट के ऊपर देखें 0 dBm पीक है इसकी और इस पॉइंट के ऊपर आपको इंटरफेरेंस जो इस सिग्नल से मिल रहा है वो कितना -20 dBm का उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है यहाँ पे. तो अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं तो इट बिकम्स 20 dB. देखें यहाँ पे मैंने सबको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें एहतियात करनी है आपने whenever you solve the problem. 0 dBm minus dBm minus dBm, it must be dB. The result is in dB, should not be a dBm. तो 20 dBm का आपको सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो. 20 dBm से अब आप dB से आपका मुराद क्या है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो. तो अगर मैं इस dB को लीनियर के अंदर चेंज कर दूं तो that would become is 100. 10 power of 20 divided by 10 is equal to 100. इसका मतलब है कि सिग्नल की पावर इंटरफेरेंस की पावर से 100 टाइम ज्यादा है. सिग्नल की पावर इंटरफेरेंस की पावर से 100 टाइम ज्यादा है. इज इट राइट? सो इट इज इन अ वेल इज अ गुड इनफ सिग्नल वी हैव एन ओवर देयर. ठीक है जी. आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे. सो यू सी दैट वी हैव गॉट ओवर देयर इज दिस. नाउ लेट्स सपोज एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सपोज कि एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी तक, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी f1 and a central frequency f2, there is a drop of the signal by 20 dB का ड्रॉप या -20 dBm का ड्रॉप हुआ सिग्नल का. सिग्नल हैज बीन ड्रॉप टू -20 dBm. इसे हम कहते हैं, we stated that this is a 20 dB per decade.
या पर ऑक्टेव भी, कहीं पे पर ऑक्टेव और कहीं पे पर डिकेड, चले मैं इसको ऑक्टेव का लफ्ज इस्तेमाल या डिकेड आप लिख लें। तो एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते तक 20 dB का अगर डिके हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज 40 dB पर ऑक्टेव या पर डिकेड ड्रॉप हो गया है। इट इज जस्ट अ यूनिट कि एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऑक्टेव आप कह रहे हैं या डिकेड कह रहे हैं। मसलन आप F2 से F3 का एक और चैनल है and your signal is going to be dropped from F2 to F3 तक पहुंचे फिर 20 dB का डिके दे दिया उसने। So we stated that this is the 20 dB per octave has been dropped there. So this is one of the other property of the Bode plot. इस तरह भी एक्सप्लोर होता है। So अगर मैं इस देखें, अगर इसका स्लोप जरा ज्यादा होता तो इस पॉइंट पे इसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के पॉइंट पे इसका डिके और भी 20 dB हो गया एंड वी स्टेटेड दैट दिस इज अ -20 dB पर ऑक्टेव हो गया। तो ये वाला फिल्टर अच्छा है कि ये वाला फिल्टर अच्छा है? रेड वाला अच्छा है कि ब्लू वाला अच्छा है? सर आपने कहा था कि जितना वो मतलब स्लो होता जाएगा तो उतना वो डिके जल्दी होगा, तो ब्लू वाला फिर उस मुताबिक तो ब्लू वाला तो बड़ी इंटरफेरेंस दे रहा है ना सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो देखे ना वो तो ज्यादा इंटरफेरेंस दे रहा है ना। अब जो रेड वाला है वो तो उस पॉइंट के ऊपर जरा कम इंटरफेरेंस दे रहा है। मैंने कहा जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेहतर है ना, जिसका स्लोप ज्यादा होता है तो स्लोप रेड वाले का ज्यादा है ना। तो उस पॉइंट के ऊपर जितना 20 dB पर ऑक्टेव दे रहा था, तो ये जो रेड वाला है फिल्टर वो तो आपको 40 dB पर ऑक्टेव दे रहा है, ठीक है ना, इतनी ड्रॉप दे रहा है, तो इट वुड बी बेटर। एक और भी मैंने बात डिस्कस की थी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर, वो अब आके यहाँ भी प्रूफ हो रही है कि आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होगा, क्योंकि एकदम से ड्रॉप होके इट इज नॉट गोइंग टू बी गिव यू एन को चैनल इंटरफेरेंस को ओवरकम करने के लिए हम कहते हैं कि पाथ लॉस एक्सपोनेंट ज्यादा, आप कह रहे थे कि नहीं पाथ लॉस एक्सपोनेंट कम बेहतर होता है। So as far as the capacity is concerned, अगर आपने ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी लेनी है तो आपका पाथ लॉस एक्सपोनेंट जितना ज़्यादा होगा तो उतना इट विल बी बेटर देयर। तो इस फिगर को आप समझ रहे हैं एवरीवन बड़ी तफसील से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये वाला फिल्टर कैसा नज़र आएगा या ये वाला फिल्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इस किस्म के फिल्टर्स की क्या प्रॉपर्टी है। सो दिस इज यू सी दैट -20 dBm और रेड वाला अगर मैं कहूँ -40 dB का है तो इट मीन्स द रेड इज मच बेटर बिकॉज इट इज मोर रैपिडली डिके, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी तेजी से डिके हो रही है। सो इट विल बी बेटर दैट कि इसका इफेक्ट जो होगा दूसरे चैनल के ऊपर कम होगा। सर ये रेड वाली के लिए वो फिल्टर कहाँ पे बनाया है आपने सर? उसका तो सिर्फ स्लोप नजर आ रहा है सर। ये है ना, यही वाला यूजर है, ये वही वाला। अब इस यूजर के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी ये ड्रॉ कर दी, इसी यूजर की मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ ड्रा कर दी। मैंने कहा अगर इसकी ये प्रॉपर्टी होगी तो इतनी बेहतर नहीं है और अगर ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये मैं डिफरेंशिएट कर रहा था कि अगर ऐसा फिर ये वाला जो है लेट्स सपोज कि क्यू मोबाइल है, ये जो ब्लू वाला है, तो रेड वाला हम कहते हैं कि चलें हवाई वाला ने ज़रा अच्छा बनाया हुआ है, तो वो हवाई वाले ने का जो है वो 40 dB पर डिकेड पर ऑक्टेव दे रहा है और ये 20 dB पर ऑक्टेव दे रहा है। तो वो एक ही फिल्टर, एक ही मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पर डिफरेंट फिल्टर्स के लिए, एक ही यूजर के डिफरेंट फिल्टर्स के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ये प्रैक्टिकली कैसे होता है सर? ये देखें आपकी जो मोबाइल्स हैं इसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिविटी के लिए। तो वो मोबाइल की जो फिल्टर्स होते हैं वो RLC सर्किट जो आप लोगों ने पढ़े हैं सर्किट्स के अंदर, जो कि फ्रिक्वेंसी की सिलेक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे वो आपने बैंड पास पढ़े होंगे, लो पास फिल्टर्स पढ़े होंगे, हाई पास फिल्टर्स पढ़े होंगे। डू यू रिमेंबर दैट? तो इसी किस्म के जो आपके फिल्टर्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है एंड दैट सर्किटरी इज इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल इन द बेस स्टेशंस एज वेल। तो वो उन फिल्टर्स के अंदर वो ख़ास फ्रिक्वेंसीज को सिलेक्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ द अलग
this has been a separate discussion about the electronic systems. Okay. So अगर मैं थोड़ा mathematically express करूँ, last time we described that signal to interference ratio with the quality के साथ, और फिर मैंने कहा कि सिर्फ quality नहीं बल्कि path loss exponent के ऊपर भी dependent है, and that would be equal to q power of n. इसके ऊपर हमने काफ़ी discussion करने के बाद we deduced with the one particular expression for the co-channel interferences के लिए हमने एक expressions को describe किया था. The quality in turn is equal to d divided by r के बराबर है. What is d? Capital D किसके बराबर है? सर दो Sir, distance between two co-channels. ठीक है, दो को चैनल के सेंटर पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस है, इट राइट? एंड r is the radius of the cell. Radius r of is the cell. radius of cell. Okay, फिर मैंने ये किया कि r divided by d power of minus n कर दिया, and that is fine. ये हमारे पास ठीक है. If you examine that, यहाँ पे मैंने नियर फार इफेक्ट के अंदर फिर एडजेसेंट चैनल को भी डिस्क्राइब किया. तो D1 is the distance of U1 and D2 is the distance of user 2 from the base station. बेस स्टेशन के दरमियान में डिफरेंस है. अच्छा, ये जो इसको इफेक्ट कर रहा है तो वो इस रीजन के अंदर इफेक्ट कर रहा है बिकॉज देयर इज एन इंटरफेरेंस देयर. तो को चैनल क्या करता है? को चैनल भी तो यही करता है कि उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर को चैनल के अंदर क्या होता है, एक ही सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है तो को चैनल सेल उसी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में आके इंटरफेयर कर रहे हैं. तो ये भी तो वही रीजन है कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. को चैनल के अंदर भी दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इफ जैसे मैंने शुरू में कहा कि वी आर गोइंग टू बी जी सर आपने बताया था कि को चैनल सेल जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि जब सेल से वो फ्रीक्वेंसी आती है तो उसकी पावर बहुत कम होती है. बहुत कम होती है. एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम उसी चीज, लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी वो जितनी भी होती है तो वो इंटरफेयर तो कर रही होती है. मतलब उसका मैकेनिज्म तो वही है कि जिस फ्रीक्वेंसी में को चैनल सेल जो है वो ऑपरेट कर रहा है तो उसकी बहुत छोटी पावर ही उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर दूसरे सेल के अंदर यूजर को डिस्टर्ब कर रहा होता है. लेकिन वो चूंकि उसकी पावर बहुत कम होती है तो उसको डिस्टर्ब होता नहीं है एक्चुअली. अब यहाँ पे तो भी फिनोमिना वही है कि एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल यूजर 1 और यूजर 2 को एक ही सेल. अब मैं दो सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, जो को चैनल सेल है. तो एक ही सेल के अंदर दो यूजर हैं और वो इस रीजन के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जो को चैनल का फिनोमिना है वो यहीं पर, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे भी वो छोटी फ्रीक्वेंसी, छोटी पावर जो है इट्स नाउ गोइंग टू बी इंटरफेयर विद द अदर को चैनल सेल. दूसरे को चैनल सेल को इंटरफेयर कर रही होती है, ठीक है. सो वहाँ पे हम डी का इस्तेमाल करते थे. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू को चैनल सेल्स. यहाँ पे डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू यूजर्स, यानी U1 और U2 के दरमियान में. इज इट राइट? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि the signal to interference ratio is because of that ratio, यानी D2 divided by D1 के ऊपर डिपेंडेंट होगा. अगर ये रेशो बड़ी है तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो बढ़ जाएगी. सो ओवर हियर यू सी दैट कि हमने यहाँ पे इस फिनोमिना को has been described over there is said to be D2 divided by D1. It will be more demonstrative over there. You see that कि let's suppose कि D2 distance is 200 meter from the base station. D1 is the distance of the user 1 from the base station at a 10 meter. 10 meter उसका distance है. So signal to interference ratio will then be equal to D2 divided by D1 power of minus n. एक चीज और नोटिस करें कि D2 और D1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना नियर फार इफेक्ट बढ़ेगा. Can you explore this? तो क्या मतलब है? The difference between the two user distance from the base station is increased, so near far effect will be increased. सर उनकी पावर कम होती जाती है. मतलब जो दूर होता जाएगा वो उतनी कम पावर से, अगर दोनों एक ही पावर से ट्रांसमिट कर रहे हैं
تو نیئر والا اسٹیشن جو ہے وہ تو اس کی اچھی پاور بیس اسٹیشن کو ملے گی نا, اور جو دور والا یوزر ہے اس کی کم پاور ملے گی. تو یہ ریشو جتنی بڑھتی رہے گی تو نیئر فار ایفیکٹ بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. Now examine that. تو اس کی ratio will be a good description over there to find out the interference at the receiver یا captured the receiver. Now you see that D2 divided by D1 power of minus n. For instance, جو آپ کا بیس اسٹیشن سے ایک وہ 10 میٹرز کے اوپر ہے ایک یوزر, اور دوسرا یوزر 200 میٹرز کے اوپر ہے. Is it right? تو اگر یہ ریشو دیکھی جائے تو 200 ڈیوائڈ بائی 10, اور لیٹس سپوز n is equal to -4. اگر آپ کے پاس n-4 ہے, 200 ڈیوائڈ بائی 10 will then be equal to -52 dB کا جو ہے وہ پاور آف انٹرفیئرنس یا سگنل ٹو انٹرفیئرنس ریشو مل رہی ہے آف ون یوزر ٹو دی ادر یوزر. ایک یوزر یعنی یوزر 2 کو یوزر 1 سے اتنی ڈی بی کا لاس مل رہا ہے. لاس آف وہ جو گین کا میں نے آپ کو بتایا تھا, دس از سیڈ ٹو بی گین. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یار جو ایس آئی آر ہے تو یوزر 2 کو جو ہے وہ -52 ڈی بی کا گین یعنی کہ لاس مل رہا ہے. سو وی ہیو نا -52 ڈی بی لاس ہیز بین ریسیوڈ بائی دا یوزر 2. چلیں میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. Now examine that. This is a user 2 جو ایک بینڈ آف فریکوینسیز ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا یہ ڈراپڈ ہو رہا ہے از اے 20 ڈی بی پر آکٹیو کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے جو ویلیوز ہیں از F1 از 0 سے لے کے F1 تک یہ ایک چینل ہے, F1 سے F2 تک دوسرا چینل ہے, ایکول اسپیس چینلز ہیں. F2 سے F3 تک ایک اور چینل ہے, F3 سے F4 تک. So that is a set of the frequencies that has been allocated to the user. Users کو allocate کی جا سکتی ہیں. اب کیا ہوا کہ یوزر 1 کا جو فلٹر ہے وہ ڈراپ کرتا ہے سگنل کی اسٹرینتھ کو ود اے 20 ڈی بی پر آکٹیو کے ساتھ. تو جب نیکسٹ فریکوینسی سینٹرل فریکوینسی پہ پہنچتا ہے تو اس نے کتنا ڈراپ کیا, 20 ڈی بی ڈراپ ہو گیا. پھر جب نیکسٹ پہ پہنچا تو 20 اینڈ دین اگین 20 ڈی بی پر آکٹیو ہو رہا ہے. تو 20 ڈی بی آلریڈی ڈراپ کر چکا ہے, دین 20 ڈی بی اٹ ول گیو ان 40 ڈی بی. اینڈ وین ایور جب تھرڈ F3 کے اوپر پہنچتا ہے, F3 کے اوپر what will happen that it will be dropped to a 60 ڈی بی کے اوپر ڈراپ کر گیا. اب آپ کو -52 ڈی بی کے گین کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جو یوزر 2 کو چینل ایلوکیٹ کرنا ہے کہاں آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ F1 پہ نہیں ایلوکیٹ کر سکتے, F2 پہ نہیں. F1 تو یوزر 1 کے لیے ہے, F2 پہ نہیں ایلوکیٹ کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کو بڑا اچھا انٹرفیئرنس مل رہا ہے, بہت زیادہ انٹرفیئرنس مل رہا ہے. آپ F3 پہ نہیں ایلوکیٹ کر سکتے کیونکہ آپ 40 ڈی بی کا ڈراپ ہوا ہے یہاں پہ, اور یہاں -52 ڈی بی کا ہم نے سپریشن دینی ہے. تو جب آپ F4 کی جگہ پہ آتے ہیں تو دس از دی یہاں پہ 60 ڈی بی, تو 60 ڈی بی -52 ڈی بی سے بڑا ہے. سو واٹ ول ہیپن دیٹ کہ دس چینل کین بی ایلوکیٹڈ ٹو دا یوزر 2. یوزر 2 کو ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے, مطلب یوزر 1 یہاں پہ ایلوکیٹ ہوا ہے تو یوزر 2 کین بی ایلوکیٹڈ اوور دیئر, یہاں پہ ایلوکیٹ ہو سکتا ہے بیکاز -52 ڈی بی سے نیچے کا انٹرفیئرنس اس کو یہاں ملے گا. سو دیٹ the meanwhile the 3 channel کا gap آپ کو ملنا ہے. So 3 channels should be gap over. If you see that over there, ہم نے -52 dB کو cater کرنا ہے. So what will happen that the user 1 signal drops there, ادھر پہنچے گا 20 dB, یہاں پہنچے گا 40 dB, اور جب یہاں پہنچے گا تو 60 dB. تو 52 dB سے باہر یہ والا چینل آتا ہے. So you can allocate a channel over here to the user 2. یہ user 2 کی place ہے. This channel can be allocated to the user 2. سر یہ 20 ڈی بی پر آکٹیٹ کے کہاں سے آئے سر؟ یہ میں آپ کو بورڈے پلاٹ بتا رہا ہوں نا,
मतलब ये यूजर 1 का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी गई है यूजर 1 को, इज इट राइट? अब उसका फिल्टर Yes, इतना sir. अच्छा नहीं है, फिल्टर अच्छा नहीं है, तो वो क्या मतलब इस तरह शार्प तो वो ड्रॉप नहीं करेगा ना। अब उसकी फ्रीक्वेंसीज या उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस बैंड के अंदर भी पेनिट्रेट करती रहती है। अब फिल्टर की जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ बोर्डे प्लॉट को, उसने बताया कि 20 dB पर ऑक्टेव ड्रॉप हो रही है उसकी, तो दूसरे फिल्टर दूसरी जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सेंटर फ्रीक्वेंसी पे जब वो पहुंचता है तो वो 20 dB पर ऑक्टेव ड्रॉप कर चुकी होती है उसकी पावर, यूजर 1 की पावर ड्रॉप, ये यूजर 1 है ना, दिस इज यूजर 1, उसकी पावर ड्रॉप कर चुकी है। जो नेक्स्ट बैंड तक पहुंचता है तो 20 dB पर ऑक्टेव है, तो दूसरी सेंटर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेगा तो 40 dB हो जाएगा ड्रॉप, और जब थर्ड बैंड के ऊपर पहुंचता है तो वो फिर 60 dB ड्रॉप कर चुका होगा। अब हमने क्या देखना है, रिक्वायरमेंट ये है कि -52 dB का ड्रॉप एटलीस्ट दूसरे को इससे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये वाला चैनल यूजर 2 को नहीं दे सकते, ये वाला नहीं दे सकते क्योंकि वो हाई इंटरफेरेंस दे रहा होता है, ये भी नहीं दे सकते। तो ये वाला जो बैंड है ये 60 dB का ड्रॉप प्रोवाइड कर चुका है जो कि -52 dB से नीचे है। सो व्हाट विल हैपन दैट कि दैट बैंड कैन बी एलोकेटेड टू द यूजर 2, यूजर 2 को एलोकेट किया जा सकेगा। तो इसका तो सर? मतलब ये जी सर तो जब तक यूजर 1 कॉल पे हो तो ये बाकी बैंड्स जो है 1 2 3 ये तो हमें साइन नहीं कर सकते, तो इस फिल्टर का तो कोई नहीं फायदा ही नहीं है सर, मतलब नहीं इतना। ये तो मैं आपको टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना। तो व्हाट वुड हैपन दैट कि ये वाला जो बैंड है ये इसी सेल के अंदर यूजर 1 और यूजर 2 लाए कर रहे हैं, मैं उसी सेल की बात कर रहा हूँ, किसी को चैनल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी सेल के अंदर ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर आपने एक यूजर को दे दी है तो दरमियान की 3 उस वक्त दूसरे यूजर को नहीं दे सकते आप। अब आप समझ गए इस बात को। इसी तरह ये राइट साइड पे, इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर भी आप वो बैंड नहीं दे सकते क्योंकि इस तरफ भी तो उसकी ड्रॉप होगी ना, इस तरफ भी तो ड्रॉप होगी, तो वो भी आप नहीं दे सकते, इज इट राइट? तो ये 3 चैनल, अब आपका क्वेश्चन वैलिड है कि ये 3 जो स्पेक्ट्रम के अंदर है तो ये तो वेस्ट हो गए, ये तो हम किसी को एलोकेट ही नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये वाले तीन क्लस्टर में किसी और सेल को एलोकेट करते हैं, क्लस्टर के अंदर किसी और सेल्स को एलोकेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर होंगे, दैट विल बी इनटू सम डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है सो व्हाट विल हैपन दैट कि उनकी पावर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, so that particular that 3 can be allocated to some other user into some other cells, दूसरे सेल्स के अंदर फिर एलोकेट करते हैं। वो जो मैं बात कर रहा था कि मसलन इफ यू हैव गॉट एन क्लस्टर साइज इज 4, अगर आपके पास क्लस्टर साइज 4 है और टोटल ऑफ द 400 चैनल्स हैं, तो एवरी पर्टिकुलर सेल विल बी एलोकेटेड विद 100 सेल्स, हर एक जो है वो सेल को 100 चैनल्स मिल जाएंगे। अब वो 100 चैनल्स ऐसे होंगे कि एक चैनल तो ये होगा, 7 वाला चैनल उस सेल को नहीं दिया जाएगा, यानी अगर ये सेल 1 को दे दिया तो ये सेल 2 को दे देंगे, ये सेल 3 को दे देंगे, ये सेल 4 को दे देंगे, इज इट राइट? सो दैट अगेन दैट विल बी गिवन टू सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। तो अगर एक सेल के अंदर फिर ये दरमियान वाले 3 नहीं इस्तेमाल होंगे, ये दरमियान वाले 3 दूसरे सेल्स को दिए जाएंगे इनटू द क्लस्टर। तो दिस फिनोमिना को यानी इस सेल एलोकेशन से आप एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस यानी नियर फार इफेक्ट को मिटिगेट कर सकेंगे बाय यूजिंग दैट स्ट्रेटजी। बट इन दैट स्ट्रेटजी व्हाट विल हैपन दैट कि आपका जो MSc है दैट विल सुपरवाइज दैट प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फिर MSc सुपरवाइज करेगा क्योंकि वो टाइम टू टाइम देखता रहेगा कि कौन से सेल्स एलोकेट किए जा सकते हैं टू डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये स्लाइड्स को देख लेते हैं। सो वी ऑलरेडी gone through the adjacent channel interference in this slide. इसकी एक्सप्लेनेशन भी डिटेल कर ली है।
سر اس میں یہ فارمولے میں سر یہ D2 D1 کیسے ریپلیس کیا ہے آر اور این کے؟ سر وہ فارمولا ذرا دکھا دیں سر یہ آر اور ڈی کے طرح یہ ہاں یہاں پر سر یہ کیسے ایکول ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، ایسا ہوا کہ ہم نے یہ فارمولا ڈسکرائب کیا تھا فار دا کو چینل سیل کے لیے، یعنی کوالٹی کے لیے اور کو چینل سیلس کے لیے کیا تھا. یس سر. یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ آر اور ڈی، چونکہ ہم کو چینل سیلس کی سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس دیکھ رہے تھے اور ریڈیس آف دا ون سیل دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو گاٹ دس. ہم نے جب نیئر فار ایفیکٹ کو ڈسکرائب کیا نا، نیئر فار ایفیکٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیئر فار ایفیکٹ کم ہوگا اگر U1 اور U2 کے درمیان میں ڈسٹینس کم ہوگا. U1 اور U2 کے درمیان میں ڈسٹینس کم ہوگا. نیئر فار ایفیکٹ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک دو ابھی تھوڑا سا آپ کو ایک اور گراف بھی بنانا چاہیے تھا تاکہ آپ کو اس کو پتہ لگ جائے. اب ہوا یہ ہے کہ جب ڈسٹینس جتنا کم ہوگا تو نیئر فار ایفیکٹ بھی کم ہوگا، کیونکہ قریب ہوتے جائیں گے. ان کی سیم پاور جو ہے وہ بیس اسٹیشن کو ملے گی. اگر یہ دونوں U1 بھی یہاں پڑھاؤ، U1 بھی ایک ہی ڈسٹینس پہ پڑھاؤ، تو U1 کی بھی پاور جتنی اس طرح ملے گی اتنی ہی U2 کی بھی ملے گی بیس اسٹیشن کو. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ U1 کیپچر کر لے گا ریسیور کو کیپچر نہیں کرے گا. U1 اور U2 کی چونکہ ایک ہی پاور ملے گی بیس اسٹیشن کو، تو وہ اس میں سے ڈسٹنگوش کر سکے گا. لیکن ایسا ہو کہ U1 کی بڑی اچھی پاور مل رہی ہے اور U2 کی بڑی کم پاور مل رہی ہے اس ریجن کے اندر صرف بات کر رہا ہوں، یہ والی نہیں. ان کی یہ ریجنز تو آلریڈی سیپریٹڈ ہے، لیکن اس ریجن کے اندر اگر دونوں کی ایک ہی جیسی پاور ملے گی تو اس میں وہ ڈسٹنگوش کر سکے گا that we have gotten two users there. Is it right? تو کوالٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ ہوئی؟ اس چیز پہ D2 divided by D1. تو we are going to be describing R divided by D کو ہم اس ریپلیس کر رہے ہیں اس D2 divided by D1 کے ساتھ. So basically the logic has been used over there is said to be چونکہ ریشو ڈیپینڈنٹ ہے. اگر D2 D1 دونوں آپ کے پاس برابر ہو جائیں, if it is unequal تو it becomes N1, آپ کے پاس 1 آئے گا. And you will come to know that signal to interference ratio اس وقت کیا بنتا ہے. Now over here you see that D2 divided by D1 and it is going to be describing over there. اگر 200 اگر آپ کا D2 بہت دور ہے اور یہ آپ کے پاس یہ ہے, and if you are going to be describe it so it will be a -52 dB. ٹھیک ہے, تو that ratio is important for the signal to interference ratio. یہ جتنی بڑھے گی یہ اتنی بڑی ہوگی تو یہ آپ کے پاس ریشو یہ آپ کے پاس ویلیو کم ہوتی رہے گی. So you can find it over, آپ different values لے لیں and then you come to know that what be the answer there. Adjacent channel interference can be minimized by careful filtering and channel assignment. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 3 چینل نہ دیں تو اس کے بعد چلے, تو چینل اسائنمنٹ ٹیکنیک سے آپ جو ہیں منیمائز کر سکتے ہیں ایڈجسنٹ چینل. یعنی -52 dB تک کا آپ کو چاہیے تو -52 dB تک ڈراپ ہو جانا چاہیے. سو یو کین ایلوکیٹ اینڈ فورتھ چینل کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. If the frequency reuse factor is small, the separation between the channels may not be sufficient to keep the adjacent interference. Can you understand this one? Everybody should read this. اور مجھے تھوڑا سا اس پہ اپنا آئیڈیا بتائیں گے. If the frequency reuse factor is small, the separation between the adjacent channels may not be sufficient to keep the adjacent channel interference level within the tolerable limits. Okay جی, take it as an assignment. اس کو assignment کے طور پہ تھوڑا سا اس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے آپ لوگوں نے. Everybody should have to write a note on this. آپ کو پہلے بھی میں نے assignment دی تھی, اس کا کیا ہوا جی؟ وہ ایک نومیریکل ہے سر, وہ سالو کیے, لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا سر کہ یہ گروپ میں جو ہے ایک کلاس روم میں ایک اسائنمنٹ سیکشن رکھا کرے اور اس کی ڈیٹ لمٹ ہوتی ہے سر, تو پھر وہ بھی آپ دیا کرے تو پھر اسی میں ہم آپ کو سبمٹ کر سکتے ہیں.
इसी तरह अच्छा, हम अगर पेज पे करेंगे सर तो फिर आपको इस तो वक्त नहीं दे सबमिट नहीं कर सकते आप? नहीं सर, लेकिन इसमें आप एक असाइनमेंट सेक्शन बना सकते हैं ना गूगल क्लासरूम में, ये जो हमारी क्लासरूम है, और उसी में आप एक डेट फिक्स रख सकते हैं, टाइम भी फिक्स रख सकते हैं सर कि 1 बजे तक 2 बजे तक, तो उसी में फिर हम सबमिट और आपको फिर सबमिट हो जाए सारी, तो इसी तरह कर दे तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं सर। इसके लिए अगर बना दे नोट तो फिर हम वर्ड में वो एक वर्ड डॉक फाइल बना के तो फिर उसमें हम अपलोड कर लेंगे, तो फिर आपको ये सबमिट हो जाए। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह इसको करता हूँ आज या कल। तो ये वाला जो पॉइंट है, यू जस्ट हैव टू बी एलोबरेट दिस, राइट? तो टेक इट एज एन असाइनमेंट। इसके ऊपर आपने एक नोट लिखना है जी, और डिफाइन करना है इस चीज को, ठीक है जी? सर ये क्लस्टर साइज के साथ रिलेटेड है ना, तो मतलब बस क्लस्टर साइज तो होगा। दिस इज एन योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, यू जस्ट हैव टू बी थिंक ऑन दिस एंड आंसर दिस। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके इस बारे में पूछूंगा, ठीक है जी? यस सर। ओके, ठीक है सर। ओके। सर लेकिन नेक्स्ट टाइम तो एग्जाम है सर, एग्जाम में क्या करेंगे अगर ये पॉइंट एग्जाम में आए तो? नहीं, आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास थर्सडे को है, थर्सडे को है ना, फिर थर्सडे को आप वो है ना, थर्सडे को आपका पेपर जो भी होगा, एग्जाम जिस तरह लेना है, फिर हम डिस्कस करेंगे थर्सडे को, राइट? तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इफ अ मोबाइल इज 20 टाइमर times closer to the base station than other mobile, so that will be a 20, yani 200 divided by 10, and then if n is equal to 4 is become, if the intermediate filter is a 20 dB per octave, the stoppage adjuster must be displaced 3 times the pass band from the center of the receiver frequency band pass to achieve the 52 dB attenuation. That's fine. फिर आपके पास ये फिगर आ गया, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, and we have got this. The power level transmitted by every mobile is controlled by base station. ठीक है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इसको कैटर करने के लिए व्हाट हैपन दैट यूजर 1 कम पावर के साथ ट्रांसमिट करे, हालांकि वो नजदीक है, और यूजर 2 जरा ज्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट करे। अब दोनों की पावर रिसीवर पे एक जैसी ही रिसीव्ड होगी। आप समझ रहे हैं बात? मसलन अगर इसने 10 वाट्स के साथ ट्रांसमिट किया, चले मैं इसे कहता हूँ 10 वाट्स के साथ चलें, और इसने 20 वाट्स के साथ ट्रांसमिट किया, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो रिसीव्ड हुआ, लेट्स सपोज 2 वाट्स यूज़र 1 से रिसीव्ड हुआ और यूज़र 2 से भी 2 वाट्स ही रिसीव्ड हो, तो इस रीजन के अंदर एक जैसी पावर रिसीव्ड हो जाए। सो दैट मे बी द अदर सोल्यूशन कि आप यूज़र 1 और यूज़र 2 को एक जैसी पावर से ट्रांसमिट ना करें, बल्कि वो डिफरेंट पावर्स के, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया कि जिन लोगों के पास दो मोबाइल्स हैं और एक जैसे मोबाइल हैं, एक ही मॉडल के हैं, एंड व्हाट्स हैपन कि एक यूज़र जो है वो अगर बेस स्टेशन के करीब रहता है और दूसरा यूज़र बेस स्टेशन से दूर रहता है, तो उसकी बैटरी लाइफ टाइम में फ़र्क होगा दोनों की, बिकॉज एक ज़्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट कर रहा होगा, एक थोड़ी, क्योंकि वो करीब है तो थोड़ी पावर के साथ ट्रांसमिट कर रहा होगा। So that the solution is this, one of the solution, the power level transmitted by every mobile is controlled by the base station. Base station बताए, station class mark, ये एक लफ्ज लिख लें आप, station class mark, ठीक है? तो एक स्टेशन क्लास मार्क जो है वो शेयर किया जाता है बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द यूजर to identify that user will have to transmit with that particular power. तो जो यूजर करीब होते हैं बेस स्टेशन के, तो वो थोड़ी पावर के साथ ट्रांसमिट करते हैं, और जो यूजर जो है वो बेस स्टेशन से दूर होते हैं वो ज्यादा पावर के साथ ट्रांसमिट करते हैं, so that the battery lifespan is controlled by using this phenomena. इस फिनोमिना से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मैं बेस स्टेशन के करीब हूँगा तो कम पावर के साथ ट्रांसमिट करके अपनी पावर को सेव करता रहूँगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मैं कहीं भी हूँ और एक ही पावर लेवल से ट्रांसमिट, यानी कि मैं एज ऑफ द सेल के ऊपर भी वही पावर ट्रांसमिट करता हूँ और नज़दीक होके भी वही पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन
बहुत ज्यादा कट रही है सर। अब ठीक है? हेलो, इस तरह हमें सही आ रही है आपकी आवाज। कासिम अब ठीक है। इंटरनेट चेक करो। तो फिर आपके जो जिसको कट के आ रही है तो उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा ना। तो पावर लेवल ट्रांसमिटेड बाय नियर यूजर विल ट्रांसमिट विद अ लो पावर, और जो जरा दूर है तो वो ज्यादा पावर से ट्रांसमिट करेगा। सो व्हाट विल हैपन, आपकी बैटरी लाइफ स्पैन जो होगी वो बढ़ेगी इससे। ठीक है जी। सो दिस इज एन पावर कंट्रोल ऑफ द इनेबल टू यूज अ स्मॉल पावर टू मेंटेन गुड लिंक क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस टू दी अदर साइड। अगर आप कम पावर से ट्रांसमिट करेंगे तो इससे ये भी होगा कि आपके जो को चैनल्स हैं वो जो हैं उनके साथ इंटरफेरेंस कम हो जाएगी आपकी। इंक्रीजिंग बैटरी लाइफ स्पैन बिफोर रिचार्जिंग टाइप आप इस CDMA सिस्टम के अंदर रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल ऑफ द 1 dB का स्ट्रिक्ट पावर कंट्रोल दिया जाता है between the users. This is the next topic is trunking. We'll discuss on Thursday. So everybody should prepare yourself for the exam on next Thursday. इस Thursday को नहीं, उसके बाद जो week में जो Thursday आ रहा है उसके अंदर, and the next class is very much important. ठीक है? तो everybody जी सर हमारे पास जो स्लाइड्स है वो 49 है और आपके पास जो है वो 54 55 है, 58 ये है बीच सर में मैं आपके इंक्लूड वो मैं बीच में इंक्लूड करता रहता हूँ ना जो हैंड रिटन है। ये सर तो वो लेटेस्ट वाले अपलोड कर देना, वो जो अपडेटेड अच्छा है। मैं ये ठीक है, ये भी मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है। यस तो ये वैसे हैंड रिटन तो आप खुद ही कर ले, ये इसमें आ जाएगा ना आपके पास, ये वीडियो के अंदर ऑडियो के अंदर आ जाएगा ना ये जो ये सर वो रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली भी नहीं है सारे पे वो है। सर रिकॉर्डिंग के लिए आप ऐसा करें ना सर कि ये जो वीडियो है आपके पास जो लिंक आई है सर, एक आपने अपलोड की है, इसको आप डाउनलोड करके फिर इस क्लासरूम में अपलोड करें तो फिर सही हो जाएगी सर। ये एक हमारे पास है जी, सुमैया को भी मैं ये कह रहा हूँ वो डाउनलोड करके फिर दोबारा अपलोड। ये देखिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ तो देखते हैं कि किसको के पास इसका वो चला जाता है। यस सर। सर एक आपके पास गई है, लैला अबीर के पास चला गया। देखें इस दफा ये क्यों इस तरह होता है? जी बिल्कुल सर, ये पता नहीं सर, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे रैंडमली है क्यों। देखें अब लैला अबीर जो है इसको वो कर सकते